Yes, very good evening, students. How are you all? So, as requested, we'll do a grammar class, right? So, let's begin with the topic conjunctions, right? So, as in the definition I've written, I've kept a conjunction is a part of speech. तो part of speech यानी कि parts of speech हमने पढ़ा है ना बेटा. Already I've given you a detailed description about parts of speech. What are the parts of speech? Noun, pronoun, verb, adverb, adjective, prepositions, conjunctions, and interjection. 8 parts of speech we did go through. So you would have definitely heard me using this word conjunctions, right? तो ये तो ठीक है. कंजंक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच. एक स्पीच पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है. ठीक है, ओके. वो तो ठीक है. तो क्या करता है? दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉसेस. ना वर्ड्स तो वी ऑल नो. ओके, इट जॉइंस वर्ड्स. वर्ड्स, यू नो व्हाट इज वर्ड? शब्द होते हैं. फ्रेजेस यानी कि क्या बेटा? फ्रेजेस यानी कि हिंदी में हम उसको वाक्यांश बोलते हैं. मगर हाउ डू वी आइडेंटिफाई बिटवीन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस? सो आई विल गिव यू अ डिटेल क्लास ऑन दैट ऑल्सो, बट फॉर नाउ फ्रेजेस मीन्स इट इज अ शब्दों का समूह है, माने ग्रुप ऑफ वर्ड्स यू कैन से. बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. ओके, दैट इज ओनली फ्रेज. सो शॉर्ट में समझना है तो इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड, but it is not a complete sentence. So that's a phrase. Now, what is a clause? Clause means there are two types of clauses, right? Independent clause and dependent clause ऐसे होते हैं. तो independent clause तो ऐसे simple words में समझना है तो जो sentence अपने बल पर खड़ा हो. The sentence which is standing alone and it makes sense on its own. It is not dependent on any other word or something to complete the sentence. Okay, so that is called as an independent clause. Okay, so I've given you a short description. We will read detailedly about phrases and clause. We'll have a class, but for now, to just give a gist about what it is, you can know about it. So, which are called its conjuncts. So, the definition says that the conjunction is a word or a group of word which it joins two words or phrases or clause or sentences. You can understand. Okay, fine. So that's what purpose. यहाँ पर लिख के रखा, देखिए मैंने. पर्पस किसके क्या करता है, क्या पर्पस क्या है इस कंजंक्शन का. So conjunctions are used to connect related ideas and make sentences. Make sentences what? Make sentences shorter, less repetitive, less confusing. अभी ये क्या है? क्यों, कैसे conjunction कैसे एक sentence को short बना सकते हैं मिस? ऐसे आप पूछ सकते हो. तो वो सब हम उदाहरण से समझेंगे कि एक सेंटेंस को कैसे कंजंक्शन शॉर्ट करता है. लेस रिपीटेटिव. रिपीटेटिव यानी कि क्या? बार बार वही चीज बोलने के बदले एक कंजंक्शन डाल के हम उसको वापस दोहराने का कम कर सकते हो. रिपीटेटिव यानी दोहराना. And then if you don't have to keep on repeating, it becomes less confusing also. So a conjunction क्या करता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्ड्स को कनेक्ट कर सकता है, फ्रेज को कनेक्ट कर सकता है, क्लॉज को कनेक्ट कर सकता है. ओके, क्लॉज यानी सिंपल समझना है तो सेंटेंस को कनेक्ट कर सकता है. ऑल राइट. तो 3 तरीके के कंजंक्शन होते हैं बेटा. एक तो होता है अपना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो नाम देख के आप डरिए मत, मैं बाद में आपको इजीली समझाऊंगी. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दूसरा होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और तीसरा होता है आपका, यहां पर लिखती हूँ, तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शंस. Okay, now we need not go. We today we will be only seeing this one. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस बाद में देखेंगे. आज हम ट्राई करेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आज आपको पूरा सिखा दें. अगर नहीं तो आज आधा सीखेंगे, अगले क्लास में आधा सीखेंगे. ऑल राइट. So we will go discuss further detailedly what is the coordinating conjunctions. So now you know for it that conjunctions are it's a part of speech and it's they join the words, phrase, and clauses.
Okay. And why do we do that? So that we makes the sentence shorter and you'll have a flow. एक सेंटेंस को, जैसे कि आप देखिए, अभी रेलगाड़ी हत्ती है। अभी ये रेलगाड़ी के सारे डिब्बे हैं मान लीजिए। अभी उसको कनेक्ट करते हैं ना हम। कनेक्ट किससे गए, इसको ही बोलते हैं ना कनेक्टर्स। इनको कनेक्टर्स भी बोला जाता है। कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, कनेक्टर्स भी बोला जाता है। लिंकिंग वर्ड्स भी बोला जाता है। लिंकिंग वर्ड्स भी बोला जाता है। तो ये डिब्बे को ये कनेक्ट करता है ना बेटा, वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस है, थर्ड सेंटेंस है। अभी उन फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस सबको साथ में भी जोड़ के हम एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं, एक वर्ड, एक कंटिन्यूस बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो वो ही काम है। तो ये पिक्चर याद रख लीजिए, जैसे ही कंजंक्शंस आपके माइंड में आया, so you should remember this picture. The ma'am told that there are train compartments. We are joining it. So those only like that only these conjunctions. ये सारे आपके conjunctions है। ये जो connectors हैं वो ही conjunctions है। क्या है ये कनेक्टर्स, क्या है वो ही आपके कंजंक्शंस है। यानी कि जोड़ते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, वर्ड्स को जोड़ते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, अपने समान समान वाक्यों, जैसे कि क्या बोलना है कि जो सेंटेंस को जोड़ते हैं तो इक्वल ग्रामेटिकल रैंक में होते हैं। इक्वल ग्रामेटिकल रैंक मैंने कहा, जैसे वर्ब को वर्ब्स के साथ जोड़ते हैं, नाउन को नाउन के साथ जोड़ते हैं, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ जोड़ते हैं, एडवर्ब तो एडवर्ब के साथ जोड़ते हैं, ऐसे। तो वो सब अभी वी आर गोइंग टू सी विद एन एग्जाम्पल। आई होप इट इज क्लियर। अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए कि क्लियर है, ताकि मैं आगे बढ़ूं, आपको एग्जाम्पल से बताऊं कि आज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या है करके। So let's do it now. So we have seen enough of what is a conjunction, why do we use a conjunction, everything I have given you a idea about it. So today now we are going to see what is a coordinating conjunction as I told you. Now coordinating conjunction ही आज हम देखने वाले हैं। तो हेडिंग कंजंक्शन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बदल देते हैं। ओके, राइट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में सेवन टाइप्स, मेन जो है सेवन टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, तो ये देखिए आपका। फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी अगला होता है एंड, उसके बाद में नॉर, देन वी हैव बट, देन वी हैव और, then we have yet, then we have one more, we have मैंने बोला था ना साथ है। यस, तो साथ ये। तो इसको देखिए, यहां पर देखिए, FANBOYS, फैन बॉयज। कैसे याद रखना है आपको, FANBOYS, फैन बॉयज। इसको ये एक्रोनिम से याद करना कर लीजिए। तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है करके आपको भूल गए तो ये कोड याद रख लीजिए, ये एक्रोनिम याद रख लीजिए, जिसको फैन बॉयज बोला जाता है। एफ के लिए क्या है, फॉर है। ए के लिए क्या है, एंड है। एन के लिए क्या है, नॉर है। बी के लिए क्या है, बट है। ओ के लिए या और, वाई के लिए येट, एस के लिए सो। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल सी वन बाय वन। ओके, अभी फॉर कहाँ पे उपयोग किया जाता है, क्या है करके वी विल सी। अभी फॉर तो हिंदी में जो ऐसे हम बोलते हैं, क्योंकि, से क्योंकि। ओके, मैं लेट गई क्योंकि मैं देर से सोई। ओके, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो लाइक दैट यू विल बी यूजिंग इट। सो फॉर, वेन एवर यू हैव टू गिव अ रीजन और अ पर्पस, एक्सप्लेन्स रीजन और पर्पस। जब भी आपको, जैसे मैंने अभी रीजन दिया ना, मैं लेट क्यों गई, क्योंकि मैं देर से उठी या देर से गई बस स्टॉप पे, इसलिए मैं लेट गई और बस बस मेरी जो है छूट गई। ऐसे जब भी मुझे रीजन, तो आप बोलोगे मिस बिकॉज, तो भी हम ऐसे यूज करते हैं। यस, बिकॉज एंड फॉर जो है सिनोनिम्स भी बोलते हैं उनको। फॉर जो है बहुत फॉर्मल में यूज किया जाता है, वो भी हम जब बिकॉज करेंगे मैं उस पर भी आपको डिफरेंस बताऊंगी। पर हाल फिलहाल गेट टू नो दैट फॉर वी विल व्हेन वी यूज इट व्हेन वी गिव रीजन और अ पर्पस। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू ओवर हियर। शी विल गो होम, कमा, फॉर शी इज सिक। वो बीमार है। ओके, क्योंकि वो घर जाएगी क्योंकि वह बीमार है। वह घर जाएगी क्योंकि वह बीमार है।
Okay, so that's what we say. She will go home for she is sick. So जब भी आप है ना ऐसे फ्रेज यूज कर रहे हो, जैसे कि आप सेंटेंस नहीं है पूरा, विल गो होम ये एक फ्रेज है, शी इज सिक ये एक फ्रेज है। तो ये फ्रेज जब यूज करोगे तो यहां पर आप कमा जरूर लगाओगे। ओके बेटा, शी विल गो होम कमा फॉर शी इज सिक। Is it clear? When you join two phrases, you should put a comma. Okay? I mean, two sentences. Sorry. She will go home is one sentence, and then she is sick is one sentence. So we will put a comma. Okay? Right. Next. Then we are coming to, I'll give you one more example for for. Okay? Rani got up late, comma, for today is a holiday. देखिए, रानी गॉट अप लेट कमा फॉर, रानी लेट उठी क्योंकि आज हॉलीडे था, क्योंकि आज हॉलीडे था। सो व्हेन यू यूजिंग कमा एंड पुटिंग अ फॉर ओवर देयर, राइट? ओके, राइट। तो ये रानी गॉट अप लेट, अभी मान लीजिए इसको दो अलग सेंटेंस में लिख सकती हूँ, रानी गॉट अप लेट, फुल स्टॉप, टुडे इज अ हॉलीडे। तो मैंने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को, ये दोनों पूरे सेंटेंस हैं, तो इन सेंटेंस को मैंने फॉर जोड़ा, गिविंग अ रीजन कि क्यों लेट गई, क्योंकि आज हॉलीडे था। तो इन दोनों को जोड़ कर ही यही रिजल्ट आया मुझे, रानी गॉट अ प्लेट फॉर टुडे इज अ हॉलीडे। ओके, क्लियर? सो इज फॉर क्लियर? कैन आई गो टू द नेक्स्ट एंड, or do you want more example? Okay, is it clear? Right. So let's go for another thing, which is our and. I hope it is clear. So let's go for our and. अभी and तो बहुत ही इजी है। and तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको और करके बोलते हैं, है ना? और जब हम जो समान समान चीजें होती हैं, एड सिमिलर स्टेटमेंट्स। अभी एड सिमिलर स्टेटमेंट ऐसे करके, तो मैं यहां पर आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। राम likes chocolates। अभी मैं यहां पर लिख रही हूँ, सीता likes chocolates। यहाँ पर ये दो अलग सेंटेंसेस, दीज आर टू डिफरेंट सेंटेंसेस। नाउ व्हाट डिड आई टेल यू, दैट अ कंजंक्शन मेक्स अ सेंटेंस shorter. I told you, right? Shorter. So now both of them have a similar statement that they both like chocolates. Then how can I add this? How can I, what conjunction can I use? I can use what and can be used when we have similar statements. So can I write it like this? Ram and Sita like chocolates. Here I will not write likes. It is wrong because I have already taught you कि जब अपना सब्जेक्ट जो है प्लूरल रहेगा तो एस या एस नहीं ऐड करना है। मैं पहले ही टेंस में आपको सिखा चुकी हूँ। राम एंड सीता लाइक चॉकलेट्स। सो व्हाट हैपेंड, मैंने ये बार बार रिपीट नहीं किया, लाइक चॉकलेट लाइक चॉकलेट। इमेजिन यू राइटिंग लाइक दिस, राम लाइक्स chocolates एंड सीता लाइक्स चॉकलेट्स। ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं बेटा। दिस इज रॉन्ग, यू शुड नॉट राइट लाइक दैट। सो विच आर दीज टू? नाउ व्हाट आर दीज? दिस इज अ नाउन, दिस इज ऑल्सो अ नाउन। So adding noun and noun together. So I'm adding a noun and noun together. Did you see the difference? So I added the noun. यही बोल रही हूँ, grammatical rank, adding the sentence equal grammatical rank. नाउ अभी और एक सेंटेंस से समझिए उदाहरण। ओके, रिया लाइक्स स्किपिंग, रिया लाइक्स स्विमिंग।
Now what I'm doing? I'm talking about दोनों जगह यहाँ पर one was Ram, one was Sita. Two different subjects are there. Okay, one is Ram, one is Sita. But here both the places they are talking about Riya. There are two different sentences, but both the places I'm talking about Riya. Okay, then what is different? The different over here is she likes skipping also. So we are talking here about the verb. But we are talking about both what is that? Add similar statements. So verb and verb we can add, and it is both the things she likes. So can we write this like this? Riya likes skipping and swimming. तो यहाँ पर हमने क्या किया? कंजंक्शन के साथ व्हाट वी डू, वी एडेड एंड विद वर्ब और वर्ब को जोड़ दिया हमने. See, we added verb plus verb with the conjunction. So conjunction कितना कमाल कर दिया देखो यहाँ पर. It added a noun and noun together to make a sentence, and over here it's adding a verb plus verb. Okay, along with another verb. Is it clear? So all these are what words? This is what did we read the definition? It connects the word with another word, right? It connects a word with another word. So this is what is that, right? Now let's see one more examples with and. So I hope it is clear. You can type in the chat box. किसी ने पूछा है यहाँ कि मिस सेंटेंस कैसे ऐड करता है, वो भी बताऊंगी. देखिए एक मिनट मैं बताती हूँ. मैं बताऊंगी एग्जाम्पल्स के साथ. यस. तो ये देखिए अभी मैं दूसरा लिख रही हूँ. रिया इज ब्यूटिफुल. रिया इज इंटेलिजेंट. ओके. सो रिया इज इंटेलिजेंट. तो ये क्या है? ये सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है. क्या है? एडजेक्टिव्स है. लास्ट में हमने देखा नाउन को नाउन के साथ जोड़ा, यहाँ पर वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ा, और यहाँ पर रिया इज ब्यूटीफुल वापस रिया के बारे में बात करना है. तो ये दोनों भी एडजेक्टिव हैं. अभी हम क्या लिख सकते हैं? रिया इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट. कैन वी राइट लाइक दिस? सो सी यहाँ पर अगर मैं लिखती यहाँ पर ब्यूटीफुल एंड वेरी रूड, यहाँ पर रूड लिखती, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट है बेटा. यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सुंदर है, बहुत बहुत ही बुरी लड़की है, माना रूड बिहेवियर है उसको. तो यहाँ पर एंड मैं नहीं उपयोग कर सकती हूँ क्योंकि दोनों अभी कॉन्ट्रास्ट है, दोनों एडजेक्टिव हैं, मगर दोनों कॉन्ट्रास्ट है. तो यहाँ पर और ही कोई कंजंक्शन आएगा, मैं वो बाद में बताऊंगी कौन सा कंजंक्शन आएगा. तो यहाँ पर दोनों ही उसका पॉजिटिव थिंग्स बता रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल भी है और इंटेलिजेंट भी है. एंड so इसीलिए we are doing and because it is a similar, both of them, there is no contrast, it is similar. Is it clear difference? So Riya is beautiful and intelligent, you will write. Okay, right. I hope and is clear with you all. Okay, right. Even when you have lot of things, like if you want to say I bought apples, mangoes, comma, bananas and oranges. ऐसे. तो यहाँ पर एंड जब हमको ये कमा सब क्या है उसका मतलब, मैंने एप्पल भी लिया और मैंगोज भी लिए और बनानास और तो इस कमा का उपयोग यहाँ एंड का मतलब ही आ रहा है. मगर वी कांट राइट इन वन सेंटेंस एवरी टाइम एंड सो द लास्ट विच यू आर एडिंग, that only you will put and. Here and all you'll put comma. So I think I've given enough explanation about and. So let's move on to the next one, which is nor. Okay. Or we'll do one thing. We'll do the but and nor. Okay, we'll do both now. Nor. अभी nor क्या है? तो आपको यहाँ पर आपको नेगेटिव यानी कि जैसे कि मुझे बोलना है ही, नॉर यानी कि आपको ना ही. फर्स्ट में हिंदी में मीनिंग दे देती हूँ आपको. ओके. तो ना ही. तो मैंने को चॉइस दे रही हूं मगर मुझे ये भी पसंद नहीं है वो भी पसंद नहीं है, तो एक नेगेटिव सेंटेंस में दिखेगा आपको जरूर. ओके. और नॉर में यही फर्क है, और जब मैं सिखाऊंगी आपको मालूम पड़ेगा. तो फॉर एग्जाम्पल ही
didn't hear dash did he see anything। यानी कि उसने कुछ ना कि कुछ सुना, ना कि कुछ देखा। तो ही डिडंट यानी कि क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन डिड नॉट का है। ही डिड नॉट हियर नॉर डिड ही सी एनीथिंग। ना ही उसने कुछ देखा, ना कि सुना, ना ही उसने कुछ देखा। ओके। उसने कुछ भी नहीं सुना, ना ही उसने कुछ सुना था, देखा था। सो यू अंडरस्टूड वेयर टू यूज नॉर। नॉर इज यूज्ड इन द नेगेटिव। यहाँ पे देखिए, नॉन कॉन्ट्रास्टिंग नेगेटिव आइडिया। ओके। नॉन कॉन्ट्रास्टिंग नेगेटिव आइडिया। ओके। उसने देखा सुना सब उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, मगर यहाँ पर उसने दोनों ही काम नहीं किया। मुझे मैगी भी पसंद नहीं है, और मुझे ये पास्ता पसंद है। ओके, बोथ इट्स नेगेटिव स्टेटमेंट, सो यू विल फाइंड अ नेगेटिव इन दैट सेंटेंस, so you can easily add nor to it. Okay, right. So let's go to the but. Okay, now बट माने क्या, लेकिन जब आपको बोलना है, या पर, परंतु, ऐसे जब बोलना है तो बट होता है। राइट। सो बट व्हाट यू कैन डू। फॉर एग्जाम्पल, जिसने आपने सवाल पूछा था मुझसे, मैं आंसर कर रही हूँ, देखिए उसको। राम ऑर्डर पिज्जा। ओके। एक सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस देखिए, डिडंट रिसीव इट। ओके। तो यहां पर उसने ऑर्डर किया पर रिसीव नहीं किया, पर या लेकिन रिसीव नहीं किया, ऐसे ही बोलना आ रहा है ना हिंदी में। सो ही ऑर्डर्ड पिज्जा बट डिडंट रिसीव इट इज व्हाट यू कैन से। नॉर रिसीव्ड इट यू कांट रहे, नॉर डिडंट, यहाँ की यहाँ पे डिडंट यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वाले सेंटेंस में डिडंट हियर आ रहा है, तो आपने नॉर लगाई। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे नॉर डिडंट, यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते हो बेटा आप। तो नॉर तो सवाल ही नहीं है। ओके, यू कांट ऐड नॉर। सो नाउ ओके, लेट्स डू दिस नाउ। राम ऑर्डर्ड पिज्जा एंड डिडंट रिसीव इट। सॉरी, बट डिडंट रिसीव इट, कॉन्ट्रास्ट। एंड नहीं कर सकते हम वहां पर, बट डिडंट रिसीव इट लिख सकते हैं, क्योंकि एंड डिडंट रिसीव तो नेगेटिव आ रहा है, तो एंड, और उसने नहीं उसको मिला, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उसको मिला नहीं ऐसे बोलेंगे ना बेटा, और उसको मिला नहीं नहीं बोलेंगे। राम ऑर्डर पिज्जा, लेकिन उसको पिज्जा डिलीवरी नहीं हुआ, ऐसे करके बोलना होगा आपको। राइट। इज इट क्लियर। मैं दो सेंटेंस को जोड़ के बताती हूँ आपको। ये लिख लिया है तो बता दीजिए बेटा, देन मैं विल गो टू एन एक्टिविटी। सी आई विल शो यू वन मोर। ये बाद में करेंगे, और येट एंड सो बाद में करेंगे। तो आज के लिए हम यही करेंगे। तो यहाँ पर बट क्या करता है, बट भी जो है आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये नॉन कॉन्ट्रास्टिंग नेगेटिव आइडिया होता है नॉर, और ये जो है अपना कॉन्ट्रास्ट प्रेसेंस कॉन्ट्रास्ट होता है। ये लेकिन होता है आपका, ये नॉर जो है आपका क्या होता है, ना ही होता है। ओके, इज इट क्लियर। यहाँ ऐसे ऐसे सेंटेंस में आया तो ये आप उपयोग करोगे। राइट। सो लेट्स गो टू द one more example, and then we'll go to the activity, because we have only 5 minutes more. I love playing cricket. Okay. One more sentence. I don't like playing football. मुझे क्रिकेट पसंद है, लेकिन फुटबॉल पसंद नहीं है। ओके। तो लेकिन आई लव प्लेइंग क्रिकेट बट, यहाँ पे कमा डालेंगे, क्योंकि दो सेंटेंस को जब आप ऐड करते हो तो कमा पक्का डालते हैं। ओके। बट आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, आई लव प्लेइंग क्रिकेट, आई लव
प्लेइंग फुटबॉल, ऐसे होते दो अलग सेंटेंस। तो आप इसको कैसे जोड़ोगे? आई लव प्लेइंग क्रिकेट एंड फुटबॉल, ऐसे जोड़ोगे। अगर ये वाला सेंटेंस रहेगा तो यू विल यूज एंड ओवर हियर, यू विल ऐड एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल, ये दोनों जोड़ी रहेगा। तो ये और ये कॉन्ट्रास्ट आया है, मुझे पसंद है मगर नहीं पसंद है। तो बट, तो बट रिप्रेजेंट्स अ कॉन्ट्रास्ट, पसंद है नहीं पसंद है तो बट डालेंगे। इधर ये भी पसंद है ये भी पसंद है तो एंड डालेंगे। इज इट क्लियर? एंड बट? यस, इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। आपने पूछा था दो सेंटेंस को जोड़ना, ये देखिए दो सेंटेंस को जोड़ दिया मैंने, पूरे दो सेंटेंस को बट के साथ जोड़ा है। ओके, यस, आई होप दैट डाउट इज क्लैरिफाइड। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। नाउ you all can answer it, okay? Sunita dash Sakshi both like to play। यहाँ पर बोथ, अभी ऐसे आ रहा है, बोथ लाइक टू प्ले, दोनों को क्या है, दोनों नाउन्स को क्या कर सकते हैं हम, साक्षी और सुनीता दोनों ही नाउन है। और यहाँ पे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एंड लिखेंगे हम बराबर। सुनीता एंड साक्षी बोथ लाइक टू प्ले। सुनीता likes to go to school, ओके, डैश साक्षी डज नॉट लाइक स्कूल एट ऑल। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, वो दोनों डिफरेंट आइडियाज आ रहे हैं। यहाँ पर लाइक है, यहाँ पे नॉट लाइक है, तो कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। कॉन्ट्रास्ट आए तो कौन बेटा लिखोगे? सेम आएगा तो एंड आएगा, कॉन्ट्रास्ट आएगा तो यस बट आएगा। यहाँ पर देखिए अपना बट आ गया। अभी पढ़ के देखिए। Sunita likes to go to school, but Sakshi does not like school at all. सुनीता को पसंद है स्कूल जाना, साक्षी को, लेकिन साक्षी को पसंद नहीं है। और साक्षी को पसंद नहीं है ऐसे नहीं बोलते हैं, लेकिन साक्षी को पसंद नहीं है। ओके, राइट। अगला देखिए। सुनीता कीप्स हर रूम नीट डैश टाइडी, यानी साफ सुथरा। साफ लेकिन सुथरा लिख सकते हो या साफ और सुथरा लिखोगे? यस, वी विल राइट सुनीता कीप्स हर रूम नीट एंड टाइडी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हो आप, एंड टाइडी, करेक्ट। और फिर यहाँ पे डैश साक्षी कीप्स हर रूम डर्टी, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीट लिखा है, यहाँ पे डर्टी है, कॉन्ट्रास्ट है दोनों का। तो कॉन्ट्रास्ट है तो क्या होगा? ऑफ कोर्स ये बट आएगा यहाँ। सो सुनीता कीप्स अ रूम नीट एंड टाइडी। नीट एंड टाइडी एक ही वर्ड, जैसे नीट साफ सुथरा, ओके, नीट एंड टाइडी, बट साक्षी कीप्स अ रूम डर्टी। वेरी गुड। और एक तीन सवाल है, देख के वील कंक्लूड द सेशन। सीता डैश राधा आर टू सिस्टर्स, ओके, सीता एंड वहां पे क्या आएगा? दोनों को कॉमन क्या करना है हमको? यस, वेरी गुड, सो वी हैव टू राइट एंड ओवर देयर, सीता एंड राधा आर टू सिस्टर्स। वेरी गुड। तो अगला देखिए। नेक्स्ट, सीता इज अ टॉल थिन डैश इंटेलिजेंट गर्ल। पहले सीता का हम खत्म करेंगे। सब एडजेक्टिव्स हैं, देखिए, टॉल है, थिन है, इंटेलिजेंट, सब डिस्क्राइबिंग कर रहा है अपना सीता को, जो कि नाउन है सीता। सीता जो है टॉल है, लंबी है, पतली है, और बहुत ही बुद्धिमान लड़की है करके बता रहे हैं, बराबर। तो यहाँ पर, तो व्हाट डू यू से दैट वन, राइट? सीता इज, यस, ये सबको जोड़ेंगे, यहाँ पे सब सिमिलर क्वालिटी है, एंड इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पर सीता को अपने सिस्टर के साथ सब नेगेटिव, देखिए, स्टॉल है यहाँ पर, शॉर्ट है, थिन है यहाँ पर, फैट है यहाँ पे, इंटेलिजेंट है मगर यहाँ पर डल है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर बट, कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है। सो देन यहाँ पर देखिए, राधा, राधा के बारे में बात कर रहे हैं, राधा इज शॉर्ट फैट, what will come here? And yes, we have to write and over here. We'll write and over here. Sorry, वो ऊपर चला गया, but come down. Yes. Now let's a sub. Now read it and see. Yes.
Are you able to read it? Yes. Yeah, I'm able to read it. Sita is a tall, thin, and intelligent girl, but her sister Radha is short, fat, and dull. Okay, right. So मैं आंसर सबमिट कर रही हूँ, देखिए. ओके. यस. अगला जाए. यू विल नॉट हेल्प देम डैश विल आई. यू विल नॉट, देखिए नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नॉट है तो एंड आएगा या नॉर आएगा, बताइए. मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ आपका. यस, नॉर आएगा. यू विल नॉट हेल्प देम नॉर विल आई डू. वेरी गुड. वेरी गुड. अभी आंसर्स को सबमिट कर रही है हमने. यस, यू कैन ऑल, इफ यू वांट यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चन अगेन. सी, आई हैव डन इट. You can write it down. I'll wait for 1 minute. Just write it down if you want to copy it down, and then you can practice it. Right. I'm waiting for you all. Yes, you can write it down. Very good. I hope you all have written it down. Yes. So here where two nouns have been added, see, by with the conjunction and here over here see Sunita and Sakshi, they've been here, it says likes, here it does not like, it's a contrast. So we have added but over here. Okay. We have added the sentence with but. Here it is neat and tidy. So both are uh, verbs which says neat and tidy here, but why we have put but, because over here she keeps it clean, but here it's a contrast, it's dirty. Radha and Sita are sisters. Again, nouns have been added. Here all are adjectives. Okay. Here also all are adjective. But here, why did we put but over here? Because it's a contrast. Tall का short लिखा है, thin का fat लिखा है, intelligent का dull लिखा है. Right. I hope it's clear. थैंक यू सो मच. आपने बहुत बढ़िया से पेशेंटली सुना आज सेशन. थैंक यू सो मच. तो आज के लिए इतना ही. अगले क्लास में मिलेंगे. हमारे अदर ये जो और येट एंड सो का हम बाद में करेंगे. जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद.